بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپک بہت دلچسپ اور امپورٹنٹ ہے آج۔ پہلا تو وہی جو زبان زد عام بھی ہے اور جس کو لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، مراد سعید صاحب کی نمبر 1 پوزیشن۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا، اور نہ حکومت بتا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نمبر 1 کیوں آئے، اور چونکہ حکومت نہیں بتا رہی اس لیے پھر اس کا پرسیپشن کیا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین۔ اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، سیاسی محاذ پر بھی اور عدالتی محاذ پر بھی، جو حکومت کے لیے پریشان کن ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں۔ میں اس کی ایوارڈ ملنے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ اس کا جو پرسیپشن چل رہا ہے وہ کس حد تک زور پکڑتا جا رہا ہے، اس حد تک کہ جو سوشل میڈیا کنونشنل میڈیا پر ایک چینل نے پر بیٹھ کر بڑے سیریس پرسنالٹیز نے، اینکرز نے یہ ڈسکشن کی۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں ٹاپ پہ نمبر 1 پہ مراد سعید کی، پھر وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ ریحام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لیے مطمئن ہوں گے ان سے، آئی ڈونٹ نو۔ پروجیکٹس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ جس آدمی کا نام لے رہے تھے آپ، پتہ نہیں جو ٹاپ لسٹ پر ہے، مراد سعید اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو پرفارمنس اور جو اس پہ الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں ہے؟ اس میں دو ہی لوگ سیریس ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک مراد سعید صاحب۔ تو ہمیں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نے سیریمنی کی ہے، دوسرے پہلے نمبر پہ آئے ہیں۔ یہ میرے سارے پارٹیسپینٹس دیکھنا چاہیے۔ بعض چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں اور وہ مطلب اب پیمرا کی خاص نظر ہوگی، بعض چیزیں آپ ہم سے نہ بلوائیں اس کے اوپر۔ انہوں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ وہ بڑے محنتی وزیر ہیں اور وہ بہت قریب ترین آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے محسن بیگ صاحب کو ضرور سنا ہے، انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق رائے کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کہہ سر، یہ ساری ڈیبیٹ کا نقطہ آغاز محسن بیگ صاحب کی طرف سے ہوا ہے آج۔ لیکن ایک تنزیہ سے جملے، زیر لب مسکراہٹ، ایک محفل میں، اپوزیشن لیڈرز کی محفل میں رانا ثناء اللہ نے بھی جب سنا کہ مراد سعید فرسٹ آئے ہیں، تو انہوں نے جے یو آئی فے کے ایک رہنما سے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا مراد سعید نمبر 1 آئیں گے۔ اور اسی طرح وہ جو ایک چینل جو بند کر دیا گیا، نیو چینل، جس پر یہ ڈسکشن ہوئی، اس پر جب ایک اینکر سے پوچھا گیا کہ مراد سعید جو نمبر 1 آئے ہیں ان کی کیا پرفارمنس تھی، ان کا جی پرفارمنس تو ان کی کوئی سامنے آئی نہیں، لیکن جو نمبر 1 آنے کی وجہ سمجھ آتی ہے وہ پھر وہی آتی ہے جو رحم خان نے لکھی ہے، اور اس کی تائید محسن بیگ صاحب نے بھی کی۔ اور جب یہ سوال کیا گیا جنرل شعیب، ریٹائرڈ شعیب صاحب سے، شعیب امجد صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریحام خان کی کتاب تو پڑھی نہیں ہے، لیکن محسن بیگ صاحب نے جو فرمایا وہ اس کی تائید ہی کر سکتے۔ تو ناظرین، لیکن ظاہر ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، اس کا پرسیپشن۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، اس قسم کے الزامات لگانے بھی نہیں چاہیے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے مراد سعید صاحب کی پرفارمنس بتائی نہیں کہ کیا تھی، کس پرفارمنس پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا، اس لیے یہ مس پرسیپشنز پھیلی اور سرایت کر گئی ہیں، اور بلکہ جڑ پکڑ گئی ہیں، اور ایک تلاور درخت بھی بن گئی ہیں۔ اور یہ ڈسکشن جب اس نیو چینل پہ ہوئی، تو اب ایک سوشل میڈیا کا تو ایک لوگ اگنور کرتے ہیں کہ یار اس پہ تو 100 قسم کی بکواس چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک کنونشنل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور جب اتنے سینئر اور سیریس اینکر پرسنز نے اور انالسٹ نے بھی یہی پرسیپشن جو ہے اسی کو سپورٹ کیا، تو پھر انہیں ایکشن لینا پڑا، اور پیمرا کو کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، جس نے کارروائی کرتے ہوئے اس پروگرام کی بیس پر نیو چینل کی نشریات معطل کر دی ہیں، اور اب وہ پورے پاکستان میں فی الحال آف ایئر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ عدالت جاتا ہے یا اپیل کرتا ہے تو پھر کیا
सूरत हाल सामने आती है और क्या वो मौक़िफ़ इख्तियार करता है। नाज़रीन, मैं अब असल परफॉर्मेंस बताऊँ आपको कि क्यों हुकूमत उसको बयान नहीं कर पा रही। वो है मवासलात के वज़ीर, और मवासलात के वज़ारत मवासलात में रोड्स नेटवर्क आता है, भी आता है, और भी हैं चीज़ें, पोस्टल सर्विस है, दीगर ज़राए रस्ल वसाइल हैं, और शाहराहें हैं। अच्छा, अब हुआ यह है कि जो जहाँ का टोल टैक्स नवाज शरीफ दौर में 300 रुपये था, वो अब माशाल्लाह बढ़ा के मुराद सईद साहब ने 1400 तक पहुँचा दिया है। अब आप डिफरेंस देखें, ये जो 1100 का डिफरेंस है, 1100 रुपये का, वो एक दिन की आमदनी जो है वो अरबों में चली गई ऊपर। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया है और यूँ ये टैक्स बढ़ गया है और फलाना बढ़ गया है, आमदनी हो गई है, वो ये परफॉर्मेंस है। लेकिन वो बताते इसलिए नहीं हैं कि वो ये बताएंगे कि मुराद सईद ने ये टोल टैक्स बढ़ाया और ये टैक्स बढ़ाए और पैसे कमाया, यानी अवाम की जेब से पैसा निकाला, तो उसका इंप्रेशन नेगेटिव जाएगा और लोग कहेंगे कि अच्छा ये महंगाई करके खुश हो रहे हैं और रिवार्ड्स दे रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए वो परफॉर्मेंस वो नहीं बता रहे जो असल है। और जब वो नहीं बता रहे तो फिर जो अवाम को समझ आ रही है वो परफॉर्मेंस की उसकी परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन रासिख हो गई है दिमागों में और दिलों में और दिलों में। तो बहरहाल हुकूमत जाने और उसकी पॉलिसीज़ जाने कि अगर अब भी 4 साल के बाद भी हुकूमत अगर फेक अवार्ड्स दे रही है, और मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस वज़ीर की करप्शन के लिए ख़त लिख रही है कि उन्होंने एक डील में बैंक के साथ अरबों रुपए की डील में करप्शन की है और करप्शन भी अरबों रुपए में, उसकी तहकीकात की जाए। उसने दावा नहीं किया, उसने ये कहा है कि तहकीकात की जाए, उस वज़ीर को नंबर 1 का अवार्ड आप नहीं, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। और 4 साल के बाद भी जब आप परफॉर्मेंस बताने के बजाय 30 साल पुराना अपना वर्ल्ड कप ही दिखा रहे हों, तो फिर क्वेश्चन मार्क्स, तंज, मजाक और मुख्तलिफ आपके ख़िलाफ़ लिखी गई किताबों के हवाले सामने आना लाजमी अमर है। नाज़रीन, एक तो ये सारी की सारी मिनिस्टर्स की कारकर्दगी जो एक बेहतर तौर पर दिखाने की कोशिश की गई, वो मुराद सईद तनाजुर में, जिनके बारे में रेहाम खान साहिबा ने ख़ुद लिखा है, उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने इन दोनों को, किन दोनों को मैं नाम नहीं लूँगा, आप ख़ुद समझें, नहीं समझ सकते तो रेहाम खान की किताब पढ़ें। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे पास सबूत नहीं है और बग़ैर सबूत के नाम नहीं लिए जा सकते। बहरहाल उनका है कि इन दोनों को उन्होंने ख़ुद काबिल एतराज़ हालत में देखा, और यही वो हालत है जिसको आगे बढ़ाते बढ़ाते लोग कह रहे हैं कि ये वो परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से मुराद सईद को अवार्ड मिला। नाज़रीन, चलते हैं आगे, छोड़ें इस टॉपिक को, आप जाने, आप इस टॉपिक को एंजॉय करें बाद में, लेकिन फ़िलहाल अगली ख़बर सुनेंगे। अगली ख़बर यह है कि हाई कोर्ट के रिमार्क के बाद जो सोशल मीडिया के ख़ास तौर पर एनालिस्ट थे, बड़े मशहूर और मारूफ, बाकायदगी से जाते थे कि नवाज़ शरीफ की सज़ा को हाईलाइट करने के लिए, उन्होंने हाई कोर्ट जाना छोड़ दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये करार दे दिया है कि वो बयान हल्फी जिसके कैलिब्री फॉन्ट की बुनियाद पर सारा बयानिया बना रखा था पीटीआई और पीटीआई के चाहने वाले, जिन्हें यूथिया कहा जाता है, उन्होंने, और वो उसको हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि फ़ॉन्ट कोई भी हो, डेट कोई भी हो, अगर उस पर जो दस्तखत हैं, वो दस्तखत करने वाले उनको ओन कर रहे हैं, तो फिर इस एफिडेविट को जाली करार नहीं दिया जा सकता। उस एफिडेविट की बुनियाद पर 8 सवालात किए हैं नैब से हाई कोर्ट ने, जिनमें से कुछ इस किस्म के सवालात हैं कि क्या बेनिफिशियल ऑनर होना करप्शन में आता है, और क्या किसी को सिर्फ इस बात पर सज़ा दी जा सकती है, उनके मरियम नवाज़ के शौहर को, कि वो इस बयान हल्फी के गवाह थे। ऐसे ही 8 सवालात हैं। ये सवालात सुनने के बाद अब जो प्रो पीटीआई
जर्नलिस्ट हैं या एंकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो हाई कोर्ट नहीं आ रहे। नाज़रीन, बड़ा धचका एक और लगा है पीटीआई हुकूमत को शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ को एक तो बरतानवी हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग की इनिशिएट करवाई थी और अकाउंट्स फ्रीज करके उन्होंने बरतानिया की हुकूमत ने तहकीकात की थी, वो उन्होंने तहकीकात बंद करके अकाउंट्स डीप फ्रीज कर दिए हैं और ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। वो शहजाद अकबर जो करोड़ों और अरबों रुपए इन इल्ज़ामात पर कि मैं बरतानिया में इनके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन साबित करूंगा, नाकाम होकर मैं नहीं चले वो अल्फाज इस्तेमाल करता, बहरहाल वो चले गए हैं, मुस्तफ़ी हो गए हैं और बल्कि या उनको निकाल दिया गया और कहा यह गया है कि अब वो अपनी वकालत करेंगे और पीटीआई को टाइम देंगे। बहरहाल वो खैर करने वाली बात होती है कि सियानी बिल्ली को खंबा तो नोच नहीं होता है। तो दूसरा जो धचका हुकूमत को लगा है वो है साफ़ पानी प्रोजेक्ट। पीने का साफ़ पानी का एक मंसूबा शहबाज शरीफ ने शुरू किया था, जिसको आके पीटीआई हुकूमत ने रोका और ये कहा कि इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। और 4 साल से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ था कि करप्ट चोर डाकू करप्ट साबित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और ये कहा है कि साफ़ पानी प्रोजेक्ट में करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल करप्शन से पाक था। और अदालत ने शहबाज शरीफ को 16 अफराद समेत बरी किया है और उनका है कि मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें उससे शहबाज शरीफ या उनके दीगर साथी इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस, साफ़ पानी प्रोजेक्ट केस से बरी होना शहबाज शरीफ के इस दावे की बहरहाल तस्दीक करता है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और एक ज़िले की भी करप्शन साबित हो तो वो उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। तो अभी तक तो जो पीटीआई का बयानिया है चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, वो ज़बानी है और अब वो झूठा भी अदालतों के ज़रिए साबित होना शुरू हो गया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है वो है तहरीक-ए-अदम-एतमाद, जिसका गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि तहरीक-ए-अदम-एतमाद लाई जाएगी। उस पर तमाम पार्टियां जो पीडीएम में है और जो पीडीएम में नहीं है, यानी नून लीग, मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम में है और दीगर जमातें और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम छोड़ चुकी है, वो इस बात पर कायल हो चुके हैं कि विदिन पार्लियामेंट चेंज लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही हो। लेकिन वो इलेक्शन फिर कोई और हुकूमत जो अदम अदमात के नतीजे में आए वो करवाए ताकि मौजूदा हुकूमत उसमें धांधली ना कर सके। और इस मकसद के लिए मुलाकातें चल रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एमक्यूएम से नून लीग की मुलाकातें और मौलाना फजल रहमान की काफ लीग से मुलाकात हो चुकी। मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात साहब के घर गए, सियासी सूरत हाल पर बात हुई और उन्होंने उनकी खैरियत भी पूछी और बहाल ये सेहत के लिए दुआ की। और शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात तय हो चुकी है जो जल्द होगी और उसके बाद ये यकीनन परेशानी बढ़ेगी। बहरहाल शहबाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात जो है ना, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट हो सकता है। अगर तो चौधरी शुजात इनके साथ मिलते हैं और मानते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत सख्त सेटबैक होगा और अगर नहीं मानते तो फिर ये अपोजिशन के लिए सेटबैक होगा। लेकिन जो एक मारूफ एंकर का दावा है और तज्जिया है वो यही है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि महंगाई के हाथों 70% लोग परेशान हैं, उनकी तसल्ली के लिए इत्तेहादी जमातें और वो मौसमी परिंदे जो शामिल किए गए थे ये कहकर
PTI से बाहर आ सकते हैं कि हम अवाम के हक़ की खातिर और इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हुकूमत का साथ छोड़ आए हैं, ताकि वो फिर दोबारा से अवाम के हलकों में अवाम के पास जा सके और वोट की दरख्वास्त कर सके। लेकिन अगर वो PTI के इत्तेहादी रहते हुए इलेक्शन में जाते हैं तो फिर उन्हें यह ख़तरा है कि फिर उन्हें अवाम में अगले इलेक्शन में पजीराई नहीं मिलेगी। ये एक वो लॉजिकल तज्ज़िया है जो समझ आता है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हुकूमत को अपनी बका के लिए बहुत मेहनत करना होगी। नाज़रीन, क्या सूरत हाल होती है मुस्तक़बिल करीब में, जो भी अपडेट होगी मुझसे आपको आगाह करेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।